किशोर किशोर त्याला आवाज जात नाही बहुतेक. ठीक आहे. Hello, am I audible? हा हा हो ओके. Okay, okay. हॅलो किशोर, एक गोष्ट सांगायची होती. म्हणजे ही जी आता आपण पीडीएफ ओपन करता का नाही तू? एकच मिनिट प्रदीप. हा बोल आता प्रदीप. जे पीपीटी आपलं पीडीएफ ओपन करता का नाही, त्या पीडीएफ मध्ये नाही का म्हणजे सर एक ब्राउझर आपलं जसं की एक्सप्लोरर वगैरे असं काही ब्राउझर आहे का नाही, त्या ब्राउझर मधून ओपन केले का नाही तिथंच तुला ते पेन वगैरे मिळतं, हायलायटर वगैरे मिळतं. म्हणजे जर काही राईट करायचं काम पडलं इन केस आहे का नाही आजूबाजूला, तर तिथंच ते पेन मिळतं आपल्याला, ते पॉइंटर वगैरे असं समथिंग. पीडीएफ का? हा, ती पीडीएफ ओपन करते वेळेस त्या ब्राउझर मधून ओपन झाली पाहिजे. आपण पीडीएफ ओपन करतो का नाही, वेगवेगळे रीडर आहे किंवा मग ऍडोबी रीडर आहे, ऍडोबी रीडर पण असेल ना, तर त्याच्यामध्ये पण ते पेन येतं, त्याला थोडस आपण तिथं राईट करू शकतो. तर ते पहा ट्राय कर, नाही तर आजचं जसं आहे आज कंटिन्यू कर, नंतर ट्राय. ऍडोब मध्येच नाही की वेगळे फॉक्झेट ट्रेडर आहे. तर ठीक आहे, ते नंतर पाहू मग, आहे का नाही, आज चालू दे. ओके, रेकॉर्डिंग मी स्टार्ट केलेले आहे. हा रेकॉर्डिंग दिसते. हा, हे चांगलं आहे. ठीक आहे, ओके. What we have seen yesterday. त्याला पण काय पाहिलं, डेफिनेशन. स्क्रीन शेअर केलेली आहे का? हो, स्क्रीन शेअर केली का? नाही, मला तर नाही दिसत आहे. ओके ओके, करतो मी शेअर. आता दिसते का स्क्रीन? होते. हा, दिसते. ओके. Okay, yesterday we have seen definition of vector space. Correct? We have seen group. We have seen examples of group. Then we have seen ring. Also we have seen commutative ring with unity. Also we have seen examples. Then field. Okay, and examples of field. We have seen definition of vector space. Okay, I will recall this definition and then we will start examples. Okay, now what is the definition? Okay, V be a non-empty set and F be a field. Okay, then we have defined addition. V cross V to V means addition is a binary operation, or you can call it as internal operation or internal composition or vector addition. And then we have defined scalar multiplication. We are taking one scalar from field and we are operating that on vector of V. The elements of this set V is called as vectors, whereas the elements of F field is called as scalars. So this is called as external composition or external operation or scalar multiplication. Then V together with these two operations called as vector space, it satisfies following property. What properties are that? First property is V with respect to addition is a abelian group. Means V को with respect to addition चार property satisfy करनी चाहिए abelian group के. First is associativity, second is existence of additive identity. Correct. What will be the additive identity here? Yes, what will be the additive? Zero. Correct. Then third property is existence of inverse.
एडिटिव इनवर्स, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स. एंड fourth property is commutativity. A plus B is same as B plus A, or you can say U plus V is same as V plus U. Correct? So ये चार properties first property में include हॅलो हो जाते किशोर हैं. Yes. Yes. मला वाटते राजेंद्रचा माईक चालू आहे, थोडा डिस्टर्ब होतोय मध्ये. अजून mute करासाठी- चलो हाँ ओके हो गया डन. ओके थैंक यू राजू भाऊ. Okay. Now next property is distribution over scalar addition. अभी यहाँ पर lambda 1 lambda 2 are scalars and V is a vector. Then lambda 1 plus lambda 2 times V is same as lambda 1 times V plus lambda 2 times V. Okay, and this should happen for all scalars from field and for all vectors from V. Second is, and fourth property, look at it, fourth property. This is what distribution over vector addition. यहाँ पर मैंने दो वेक्टर लिए V1 and V2 and one scalar लिया. Then lambda times V1 plus V2 is same as lambda times V1 plus lambda times V2, and this should happen for all lambda for all scalar and for all vectors in V. Okay, यहाँ पर है distribution over scalar addition, यहाँ पर है distribution over vector addition. Third property is lambda 1 lambda 2 V is same as lambda 1 lambda 2 times V. Okay, and fifth property is 1 times V is same as V, where 1 is from field. Okay, यहाँ पर scalar multiplication. 1 is from field, V is from vector. I mean V, capital V. So 1 into V is same as V. Okay. Now, okay, the elements of V are called as vectors, whereas the elements of F are called as scalars. किशोर Yes, हाँ, किशोर? बोलो. वो जो वन इंटू वी का जो क्या बताया वो थोड़ा एक बार फिर से बताना मेरे को. 1 इंटू वी का 1 जो है वो स्केलर है. 1 इज अ मेंबर ऑफ फील्ड, मतलब यूनिटी एलिमेंट. जैसे हमने कल देखा था फील्ड का डेफिनेशन, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी. सो दिस 1 इज यूनिटी. गॉट इट हो गया समझ में. प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, देन वी विल कम टू प्रॉपर्टीज. Some standard examples of vector space. Space of n tuples. Fn means f cross, जैसे rn होता है, r cross r n times. वैसे Fn means f cross f n times. Okay, Cartesian product of f n times. So इसके एलिमेंट कैसे होंगे? ऐसे n टपल में होगा, a1 a2 up to an, where ai is from f. Correct? Then Fn over f is a vector space. और उसके लिए वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया है? देखो, एक एलिमेंट लिया v, एक वेक्टर लिया यहाँ से Fn से, सपोज a1 a2 an ऐसे एलिमेंट हो गए. दूसरा एक वेक्टर लिया w, उसके एलिमेंट b1 प्लस b2 b1 b2 ऐसा bn n टपल वाला दूसरा एक एलिमेंट. देन v प्लस w कैसे डिफाइन किया है? कंपोनेंट वाइज एडिशन. a1 विथ फर्स्ट कंपोनेंट इसका विथ इसके साथ ऐड किया, सेकंड कंपोनेंट इसका विथ सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस, लाइक दिस. ओके, कंपोनेंट वाइज एडिशन. देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक वेक्टर उठाया v अगेन v से, और एक स्केलर उठाया लैम्बडा फ्रॉम फील्ड. देन लैम्बडा टाइम्स v कैसे डिफाइन किया? ये लैम्बडा हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेगा. सो लैम्बडा टाइम्स a1, लैम्बडा टाइम्स a2 एंड सो ऑन लैम्बडा टाइम्स an. ओके, ऐसे डिफाइन किया. देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जैसे यहाँ पर डिफाइन किया है,
with respect to this fn over f becomes a vector space. Okay, ये क्या बनता है? Vector space. Okay, clear? You can cross check by checking these 5 properties. कितना? 5 properties. ओके, यहाँ पर क्या है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन प्रूव किया है. लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 टाइम्स वी सेम है लैम्बडा 1 टाइम्स लैम्बडा 2 टाइम्स वी. ओके, सो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 ले लिया, वेक्टर वी ले लिया, यहाँ पर पुट किया है मैंने. तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 भी एक स्केलर ही होगा ना, वो एफ का ही मेंबर होगा. करेक्ट? Am I audible? Okay. Then we operate this lambda 1 plus lambda 2 on this vector v. तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर. फिर यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके ओके, देन अगेन यहाँ पर मैंने इसको दो अलग वेक्टर के एडिशन में लिखा, लैम्बडा 1 a1 प्लस यहाँ पर ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का, ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड वेक्टर का. लाइकवाइज सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इसको मैंने स्प्लिट किया. देन अगेन यहाँ से यू कैन टेक लैम्बडा 1 आउटसाइड, यहाँ पर लैम्बडा 1 है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा. ओके, सो दिस इज लैम्बडा 1. ये यहाँ पर भी लैम्बडा 1 ही होना चाहिए, ये भी लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 2, यहाँ पर लैम्बडा 2 होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक? Yes. So we can take, yes, here we can take lambda 1 outside, then we'll get vector v. Again, if we take lambda 2 outside common, then we'll get vector v. So we'll get lambda 1 times v plus lambda 2 times v. एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर कर लिए. You can cross check all these property. Okay, आप लोग सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं. क्लियर? Okay, now okay, field over field, r over r, this is also vector space with respect to usual vector addition and usual scalar multiplication. Okay, I will discuss general. Okay, ये r तो ये particular case हो गया, set of real number. Okay, r set of real number over r, but in general मैंने कोई भी field लिया. Okay, okay, suppose कोई भी मैंने एक field ले लिया. Then और ऑपरेशन क्या डिफाइन किया मैंने? वेक्टर एडिशन. अब ये फील्ड है, करेक्ट? तो एफ, इसका ये पैकेज रहता है ना, कल हमने डेफिनेशन देखा. विठल, focus to be laid on our strengths and opportunities. जो लिंक होता है ना, वो उसमें उसकी साइड पे चेक करो. कल हमने देखा ये क्या होता है? दिस इज अ फील्ड, करेक्ट? विथ रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, एफ क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है?
abelian group. Correct? Am I audible? Yes. Okay, it's abelian group. Correct? Abelian spelling. Okay, abelian group. Then F F F में से मैंने क्या किया, 0 को हटा दिया. Correct? Then it with respect to multiplication again abelian group. Correct? Then इस पैकेज को हम बोलते हैं फील्ड. करेक्ट? Do you understand? Then this is called as field. Correct? Yes. Okay. Now अब मैंने क्या किया, अभी देखो इस फील्ड के पास एक ऑपरेशन Sure. एडिशन. हाँ बोलो. किशोर, हाँ ये बोलो ना. ये जो तूने जो 0 को हटा दिया ना, ओके, हाँ. वो इससे हटा है कि ग्रुप में वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, इसके वजह से ना, विद रिस्पेक्ट टू डॉट. क्या 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 क्या? हाँ हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट उसको इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. गॉट इट. ठीक है. Okay. Now this package is a field. Correct? ये सबको समझ में आया. अब इसके पास एक ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, खुद का एक ऑपरेशन है फील्ड के पास. करेक्ट? डिफाइन किया हुआ, और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया हुआ है. करेक्ट? और वेक्टर स्पेस के लिए क्या चाहिए हमें? अगेन 2 ऑपरेशन चाहिए, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? Yes. करेक्ट. अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑपरेशन है इसी को मैं क्या बोलूंगा, मेरा वेक्टर एडिशन. ओके, आई विल कॉल दिस एज माय वेक्टर एडिशन. ओके, और ये जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, माय स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन. ओके, this is for vector addition and this is for scalar multiplication. Now these 2 operation will work here and this forms a vector space. Okay, अभी मैं कुछ नया ऑपरेशन नहीं डिफाइन करने वाला. इसके लिए हमने देखा था v over f. करेक्ट? हमने डेफिनेशन में क्या देखा, v over f. करेक्ट? तो मैंने v क्या लिया यहां पर, v क्या लिया मैंने, v मैंने क्या लिया, f लिया इस बार. आई कैन टेक एनी सेट ना, v नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. करेक्ट? तो मैंने v को क्या लिया, f ले लिया. ओके, अब मुझे क्या करना है, कुछ ऑपरेशन डिफाइन करना है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट? तो मैंने क्या किया, इस पर ऑलरेडी जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन ले लिया इसके लिए एज अ वेक्टर एडिशन. ये जो ऑपरेशन है उसको मैंने वेक्टर एडिशन ले लिया, और ये जो ऑपरेशन है उसको मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके मैं यूज कर रहा हूं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. देन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. तब ये वेक्टर स्पेस बनता है. यू कैन क्रॉस चेक ऑल दिस, जो भी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की, इट विल सेटिस्फाई. क्या है पहली प्रॉपर्टी, दिस एफ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एबिलियन ग्रुप. लुक एट हियर, यहां पर मेरी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. गेटिंग इट? हियर इज माय गेटिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप. गेटिंग इट? देखो डेफिनेशन क्या है.
देखो V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप है ना मेरा, एफ मैंने V लिया है ना इस बार, करेक्ट। V क्या है मेरा, एफ ही है। नाउ नाउ एफ प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। ये समझ में आ रहा है इन सबको? हेलो, यस। बाकी लोग? नहीं किशोर, ये जो है ना Yes. मतलब हाँ इतना क्लियर नहीं हुआ। ये जो अभी जो वाला जो पार्ट बोला ना तूने, जो V को हाँ, लेंगे F से, ठीक है, वो इतना क्लियर नहीं हुआ है। ओके ओके ठीक है, बताता हूँ। अभी यहाँ पर क्या बोला है देखो, V एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के लिए, करेक्ट। V be any non-empty set and F be a field, करेक्ट। अब मैंने जो मेरा V है वो क्या ले लिया, मैंने F ले लिया फील्ड, जिस पर मेरे को क्या चाहिए था, एक सेट चाहिए था V और एक फील्ड चाहिए था, करेक्ट। मैंने जो सेट था V वो ही मैंने F कंसीडर किया है, फील्ड कंसीडर किया है। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके ओके ओके। क्लियर। अब हम्म। मुझे दो ऑपरेशन चाहिए, ये और ए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट माय फील्ड ऑलरेडी हैव दिस टू ऑपरेशंस। फील्ड के डेफिनेशन में हमने देखा है, यस, फील्ड के डेफिनेशन में देखा है, फील्ड के पास एक एडिशन Yes. का ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। देन आई एम ट्रीटिंग दिस एडिशन एज माय वेक्टर एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ये जो दो ऑपरेशन है इसी को मैं वेक्टर एडिशन ट्रीट कर रहा हूं और इसको मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रीट कर रहा हूं। मैं कोई नया ऑपरेशन नहीं डिफाइन करने वाला, ओके, बिकॉज आई एम लेजी, आई डोंट वांट टू डिफाइन एनी न्यू ऑपरेशन राइट नाउ। आई वांट टू यूज दिस टू, जो ऑलरेडी है उसी को मुझे यूज करना है, ओके। देन लुक एट इट नाउ, डेफिनेशन, okay, so then it has to follow these 5 property, then we call it as vector space, okay। now V with respect to addition is an abelian group। अभी देखो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, V मतलब F है, V को F कंसिडर करो। now V is my F, so F V with respect to addition abelian group होना चाहिए। अब V की जगह F है, मैं यहाँ पर V लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हट जाए। V is equal to F now, keep this in mind, V और F मेरा सेम है। so V with respect to addition abelian group, that means F with respect to addition abelian group होना चाहिए, जो ऑलरेडी है फील्ड के डेफिनेशन के अनुसार, यस, करेक्ट। और क्या है, यस, ओके, यस। हाँ, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 टाइम्स V इज इक्वल टू लैम्बडा 1 V प्लस लैम्बडा 2 टाइम्स V। ये प्रॉपर्टी क्या देखी थी हमने, रिंग में देखी थी ना, एवरी फील्ड इज द रिंग बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. एवरी फील्ड इज अ रिंग, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग ना। अब यहाँ पर मेरे ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और V की जगह लैम्बडा 3 होगा, यू कैन कॉल इट एज V और लैम्बडा 3 आल्सो। ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स इट। सेकंड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी रिंग के डेफिनेशन में देखा ना हमने। क्लियर? यस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये रिंग का डेफिनेशन है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और एबीसी कहाँ के मेंबर है, आर के मतलब जिस पर डिफाइन किया है ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमने एफ कंसिडर किया है ना, आर की जगह एफ कंसिडर किया है, एफ ले लिया है ना।
नोटेशन डिफरेंट है. करेक्ट. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे किशोर मला असं म्हणायचं हा. आहे एक हॅलो म्हणजे बोल मला ना, जे बोल ना. आता मी थोडस हा ते आपण असं करत आहे की जे काही सेट ऑफ व्हेक्टर होता त्याच्याऐवजी हा. आता आपण फील्ड मधले एलिमेंट घेत आहे फक्त आहे का नाही हो हो. आणि म्हणून सगळे तिथे ते field लॅम्बडा चेच वगैरे member. हा हा Correct, आणि correct, ऑपरेशन आहे तेच आहेत है का नाही आपण फक्त हो, सेट तेच. बदलला फक्त बस. जनरली वीला दोन फक्त वेगळे मी सेट असतात व्ही आणि एफ. हा? दोन्ही एकच जनरली दोन वेगळे सेट असतात एफ आणि व्ही. हा दोन्ही एकच कन्सिडर करतो. मी आता Right. आय एम कन्सिडरिंग व्ही ॲज एफ. हो ना मग पण मग तो हा. व्हेक्टरचा सेट आहे की कोणता सेट आहे एफ जो लिहिला वेक्टरचा सेट आता माझ्या दृष्टीने तो वेक्टरचा सेट झाला. मग त्याला एफ का लिहि रे असं मला म्हणायचं नाही तो ऑलरेडी फील्ड आहे ना आणि बाहेर पण एक सेट आहे व्ही. हम्म, करेक्ट. हम्म, बाहेरचा जो सेट व्ही आहे आता इथे मी हम्म, टपल मध्ये लुक एट हियर इथे एक्झाम्पल काय केलंय मी टपल मध्ये घेतलेले एफ एन. स्क्रीन ओके एक्झाम्पल घेतलं होतं ना इथे. इथे काय केलं मी वेक्टर स्पेस काय केलं एफ एन एफ क्रॉस एफ एन टाइम्स टपल लिहा. आता मी एन च्या एन इक्वल टू 1 पुट करतो काय मिळेल मला एन इक्वल टू 1 पुट केल्यानंतर if I put n equal to 1 what I will get here एफ f over f. I am talking about that. त्याच्याबद्दलच ओके बोलतोय ना ओके मी. हा हा Clear? हा हा राजू हाँ समझ में आ रहा है? हाँ This मैं forms a vector space. ये ठीक है ओके एफ When I put n एफ equal ओवर to एफ 1 फॉर्म्स what द I will वेक्टर get? स्पेस राइट. Yes, f over हाँ. f. तो एक कैसे हाँ, बन रहा है वेक्टर स्पेस में ये शॉर्ट में बता रहा था ओके ओके क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये वेक्टर एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये ऑलरेडी फील्ड में डिफाइन हो गए हैं. ओके ये जो 5 प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी डिफाइन है. ओके ये 5 प्रॉपर्टी डिफाइन है ऑलरेडी. ओके ये देखा हमने ये 2 देखे ये भी प्रॉपर्टी है फील्ड में यू कैन क्रॉस चेक. ये क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ना रिंग की पहली प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर तीनों स्केलर होंगे. देखो यहाँ पर मतलब जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूं इससे वो क्या होंगे स्केलर ही होंगे ना तीनों. समझ में आ रहा है क्या? देखो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 में कहां से ले रहा हूं एफ से और वी कहां से स्मॉल वी कहां से कैपिटल वी से. बट मेरा कैपिटल वी से क्या है एफ है कैपिटल वी क्या है एफ एफ है तो अब ये तीनों एलिमेंट कहां से हो जाएंगे एफ से एफ से और तीनों एलिमेंट एफ से है मतलब दिस इज व्हाट associativity in F, एफ associativity in field. Getting it? यस यस Correct. Correct. And this is what unity element, multiplicative identity. अब ये V भी F से ही होगा ना क्योंकि मेरा कैपिटल V क्या है F. मतलब ये भी स्केलर है फील्ड का ही मेंबर है और ये 1 इंटू अब ये 1 क्या है यूनिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना ये किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा तो वही मिलने वाला है मुझे. क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? ये समझ में आया सबको? I think they are confused there in F is a collection of scalars and V is the collection of vectors. So if we replacing that V by F, so how it is becoming
a vector. That they, I think they are confused in that concept. Okay, okay, no problem. So just let me add in it. If you look at any vector, it is in the form of tuples. If you go for the two-dimensional vector, A comma B form x y. For n tuple x1, x2, x3. So every Okay, number here. Yes. Okay, here I will take one more example. R square ले लिया. Okay, which is nothing but what? R cross R. Okay. इसके एलिमेंट कैसे रहते हैं? टपल में रहते हैं. करेक्ट. XY, where XY is from R. Correct. XY कहाँ से? R से होते हैं. ओके. और मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया, वेक्टर एडिशन. ओके, वेक्टर एडिशन मैंने कैसे डिफाइन किया? v प्लस w कैसे डिफाइन किया? u प्लस w लेता हूं मैं. u प्लस w मैंने कैसे डिफाइन किया? अब u इसका मेंबर होगा R2 का, तो xy के फॉर्म में होगा, टपल के फॉर्म में. सो x1 y1 होगा. करेक्ट. सो x1 कॉमा y1 ऐसा होगा. u वेक्टर u और वेक्टर v कैसे होगा? x2 y2. और इनका एडिशन मैंने कैसे डिफाइन किया? कंपोनेंट वाइज. x1 प्लस x2 y1 प्लस y2. ओके, इसको मैंने ऐसे डिफाइन किया. ओके. और u k इंटू k एक स्केलर है, k इंटू यू लिया मैंने. k इंटू यू क्या आएगा? k इज फ्रॉम R नाउ. k बिलोंग्स टू R. k belongs to R. ओके. so k इंटू ए कैसे डिफाइन किया है मैंने? k टाइम्स u वेक्टर क्या है मेरा? x1 y1. क्या मिलेगा हमें? अब k मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? k हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ k से. देन व्हाट आई विल गेट? k इंटू u1 comma k into, sorry, x1. Here we have x1. k into x1 comma k into y1. Okay, now these two operation, vector addition और scalar multiplication, यहाँ पर मैंने scalar multiplication define किया ऐसे. a addition है और यहाँ पर multiplication. Now with respect to these two operation, this R square over R is a vector space. ये vector space है. Am I audible? Hello. Yes. Audible. Now this is a vector space. ये समझ में आया सबको? ये तो सबको पता होगा. Correct? Yes. Now अब मैं क्या कर रहा हूँ? R स्क्वायर की जगह R ले रहा हूँ पर्टिकुलर केस. और ऑपरेशन क्या होगा? u प्लस v.
अब आर का मेंबर क्या है, सिंगल एलिमेंट है ना, टपल तो नहीं आएगा यहाँ पर। डू यू अंडरस्टैंड? यस। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आर और आर ले रहा हूँ। अब वेक्टर एडिशन कैसे आएगा, वेक्टर एडिशन कैसे आएगा, 2 + v कैसे आएगा, नॉर्मल, करेक्ट, क्योंकि u और v कैसे रहेगा यहाँ पर, r में u और v कैसे रहेगा, सिंगल एलिमेंट है ना, यहाँ पर टपल था मेरा आर स्क्वायर में, बट यहाँ पर सिंगल आर में सिंगल एलिमेंट, करेक्ट, टपल नहीं आएगा ना। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन k इंटू यू, ऐसे डिफाइन हुआ, देन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, तब ये वेक्टर स्पेस बनेगा आर और आर। ये समझ में आया, आर और आर वेक्टर स्पेस बनेगा। हेलो, किशोर हाँ बोलो, किशोर, बोलो, हाँ बोलो ना। मतलब तो ऐसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर मैंने आर से एक एलिमेंट लिया और एक आर से एलिमेंट लिया, ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली आर का ही होता है ना, और आर के हाँ, साथ क्योंकि अगर वो फील्ड है, एक नंबर मल्टीप्लाई करता है आर ही होता है। करेक्ट। तो आर ओवर आर का मतलब वही है ना, तो वही बोलना चाहते हैं ना, आर हाँ, ओवर वही आर का वही मतलब। वही बोल रहा हूँ। ओके ओके, वो तो सही है, वो तो सही है। तो ये क्योंकि ये फील्ड है ना, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड इट इज अ फील्ड, कल हमने इट इज देखा है। हाँ। और फील्ड में क्या है, ये दो ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं ना, ये एडिशन का और ये मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। और वहां पर जो फील्ड के प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस के है। गेटिंग इट? ये 5 प्रॉपर्टी है ना, ये फील्ड के ही प्रॉपर्टी है। गेटिंग इट? अब यहाँ पर कैसा हो रहा है, जब मैं सिंगल आर ले रहा हूं, सिंगल आर, और जब मेरा टपल होता है, ओके, जब मेरा आर एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ओके, तब यहाँ पर v का जो सेंस है, मतलब v का विजुअलाइजेशन जो है, वो टपल में बन जाता है। बट मेरा सिंगल आर होता है, तब ये v क्या होता है, नंबर होता है ना, सिंगल नंबर, सिंगल एलिमेंट। करेक्ट। तो ये जो 5 प्रॉपर्टी है, ये फील्ड के ही है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, यानी कि किशोर, आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई उसमें मतलब आर 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 स्क्वायर में भी सेटिस्फाई कर रहा है, आर में भी सेटिस्फाई कर रहा है फील्ड के प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन आर स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ रहा है, लेकिन आर और आर के लिए मुझे ऑपरेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, गॉट इट। इसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है इसके ऑपरेशन, इसीलिए मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई। अच्छा, और एक बात है, ये जो तूने डिफाइन किया u + v है, जो आपने डिफाइन किया ना अभी, उसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, u + v का और एक डेफिनेशन से डिफाइन करके बता मेरे को। हाँ, ये आर स्क्वायर के लिए, हाँ, आर स्क्वायर के लिए। अब ये जो u + v हम लोग ने एक यूजुअल वे से डिफाइन किया, मतलब इसका एक ही डेफिनेशन है या उसका? हाँ, नहीं, ऐसे तुम हजारों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। लेट अस सी, एडिशन ना। हाँ, u + v में ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखो, सपोज x1, y1 है, ओके, और दूसरा वेक्टर x2, y2। तो इसका एडिशन में कैसे डिफाइन करता हो, देखो आप, x1 - x2,
comma y1 minus y2, और I can define like this. थोड़ा सिंपल करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. x1 plus y2 और y1 plus x2. मैंने क्या किया, पहला कंपोनेंट को इसके वाले Okay, सेकंड okay, got it. कंपोनेंट पे ऐड, got it. इसका हाँ. सेकंड कंपोनेंट. तो ऐसे यू कैन डिफाइन थाउजेंड्स ऑफ वे एडिशन. बट ये डिफाइन करते समय हमें ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना चाहिए, इस तरह से डिफाइन अगर ये करना पड़ेगा, सारे राइट? प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तब जाके वो वेक्टर स्पेस बनने वाला है. ओके, डिफाइन करेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ डिफाइन. ओके. वो चेक करने हैं हमें यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर करेगा तब ये वेक्टर स्पेस, अदरवाइज चलो छोड़ दो. गेटिंग इट? Okay, got बट it. इस केस में मुझे कोई ऑपरेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी दो ऑपरेशन है, और उस दो ऑपरेशन की वजह से ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर स्पेस बन रहा है. गेटिंग इट? तो मुझे ये कहना था कि एफ की जगह नाउ यू कैन टेक एनी फील्ड, देन इट विल बिकम अ वेक्टर स्पेस बाय डिफॉल्ट. क्लियर? एफ यू कैन टेक एनी फील्ड. अभी आप लोगों को तो फील्ड क्या क्या पता है? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रैशनल. ओके, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट फील्ड्स आर देयर. सो इफ यू टेक एनी फील्ड ओवर इटसेल्फ, देन इट फॉर्म्स बाय डिफॉल्ट वेक्टर. मतलब अभी आप लोग नींद पे भी हो और आपको पूछे कि कोई भी एग्जांपल बताओ वेक्टर स्पेस का, देन यू कैन टेल हिम टेक एनी फील्ड ओवर इटसेल्फ, इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. तो आप लोगों को अभी एग्जांपल ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं. आर यू गेटिंग? अच्छा, एनी फील्ड ओवर इटसेल्फ का मतलब एफ स्क्वायर आप बोल रहे हैं, यस यस, एफ ओवर एफ. यानी कि टू इसका टपल जो meaning- बोलते हैं ना, टू टपल. नहीं, टू टपल नहीं, सिंगल की बात कर रहा हूँ मैं. एफ ओवर एफ, इसको बोलते हैं एफ ओवर एफ. ये जो है ना, एफ ओवर एफ, इट इज अ बाय डिफॉल्ट वेक्टर. बट इस एफ को क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए. क्लियर? I think we use field members like as we use constant in linear multiplication, linear combination, right? जे लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण कॉन्स्टंट घेतो वेक्टरचे हे काढायला, डिपेंडन्सी चेक करायला, तसंच इथे फील्डच्या एलिमेंटचा रोल असा आहे की वेक्टर स्पेस मध्ये ॲज अ कॉन्स्टंट स्केलर मल्टिप्लिकेशनचा यूज करण्यासाठी करतो. सो दॅट इज द डिफरन्स. ओके, क्लियर हो गया? अब कोई भी किसी ने भी पूछा कि वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन बोलो, सॉरी एग्जांपल दो, क्या करना है? कोई भी फील्ड उठाओ, उसको बोलो फील्ड ले, उसके ऊपर फील्ड ओवर फील्ड ले वेक्टर स्पेस. गेटिंग इट? किशोर, ये फील्ड ओवर फील्ड है ना, वो थोड़ा नहीं समझ में है. अरे इसको बोलने का होता है ये फील्ड ओवर फील्ड. ओके, वी ओवर एफ बोलते हैं ना हम, तो अब मेरा वी वी एफ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फील्ड ओवर फील्ड. ओके, ओके. क्लियर? ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज भी उन्होंने सेटिस्फाई की है. प्रॉपर्टीज हम बाद में देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, एफ और एफ की स्टोरी समझ में आई सबको? तो मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ, ई ओवर सी. करेक्ट? इथे पेन असते का जामकर? तिथं नाही राहत रे.
हे नाही का कमेंट सेक्शन मध्ये जा किशोर, कमेंट सेक्शन मध्ये जा, इथे ना कमेंट मध्ये कशामधनं ओपन केलं तू हा. पीडीएफ? हा, त्याच्यामध्ये पेन्सिल ट्रेडर मध्ये हा आया हा ओके. हा तो इथे मी अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो काय सी ओव्हर सी येस okay this is another example getting it one more example q over q this is the example of vector space because we know f over f is a vector space सबको समझ में आया ये where f is a field ओके सबको समझ में आया हेलो am I audible Yes, yes. yes then r square over r कंपोनेंट वाइज एडिशन ओके यहाँ पर क्या कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया देन आर स्क्वायर ओवर आर इज ए ये समझ में आया ना सेकंड एग्जांपल ये ऑलरेडी हमने देखा है आई आई हेलो समझ में आया सबको एम आई ऑडिबल yes yes किशोर ओके ओके नाउ सी 100 ओवर सी मतलब सी का 100 टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर सी अगेन वेक्टर एडिशन क्या है कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से ओके अब देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल के लिए है के ओवर एफ ओके के ओवर एफ के क्या है मेरा सुपर फील्ड है और एफ क्या है सब फील्ड है के क्या है बड़ा सेट है और एफ क्या है उसका सबसेट है हेलो एम आई ऑडिबल yes Yes, Kishore, yes. ओके देन के ओवर एफ इज अगेन वेक्टर स्पेस हमने देखा एफ और एफ वेक्टर स्पेस होता है yes we already have seen f over f is a vector space that we already have seen correct f over f क्या होता है वेक्टर स्पेस ये हमने देखा है अब ये क्या बोल रहा है मोर ओवर के ओवर एफ के इज अ सुपर फील्ड अब ये कुछ नया बोल रहा है समथिंग न्यू यहाँ पर क्या है के क्या है सुपर फील्ड और एफ क्या है सब फील्ड है एफ क्या है छोटा सेट है इसका के का ही सेट है देन इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस आर ट्रिवियल देखो वही बोल रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होना चाहिए यहां पर के विथ रिस्पेक्ट टू अब देखो के क्या है फील्ड है एफ क्या है सब फील्ड है देन के प्लस डॉट इज फील्ड एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड के ऐसा पैकेज होगा हमारे पास
करेक्ट। दूसरा एक पैकेज है एफ अब देखो ये जो ऑपरेशन है ना ये एडिशन वाला ये और ये सेम ही है क्योंकि ये क्या है ये एफ क्या है इसका सब फील्ड है और ये जो मल्टीप्लीकेशन ना ये भी सेम ही है यहाँ पर ये दोनों एक ही है गेटिंग इट ये कोई अलग नहीं है। हेलो डू यू अंडरस्टैंड दिस टू आर सेम ऑपरेशंस। हेलो यस किशोर। सबको समझ में आ रहा है राजू? यस। अब देखो हमने एफ और एफ के लिए मतलब यहाँ पर भी हमने एफ कंसिडर एफ लिया था लास्ट टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले के की जगह मैंने एफ लिया था ना तो ये वेक्टर स्पेस बन रहा था ये हमने देखा। अब वही स्टोरी रिपीट हो रही है। ओके अगेन हमें क्या होना चाहिए के ओवर के विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए एबिलियन ग्रुप फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ना ये क्या होना चाहिए एबिलियन ग्रुप ये है क्या एबिलियन ग्रुप ये फील्ड है तो एबिलियन ग्रुप है ना यहाँ पर एडिशन है अब ये है ना एबिलियन ग्रुप यस ये एबिलियन ग्रुप है ना गेटिंग इट हेलो am I audible यस यस किशोर, हाँ ऑडिबल है। मेरे को समझ में नहीं है एबिलियन ग्रुप वाला जो पार्ट है वो फील्ड है बोल के एबिलियन ग्रुप बोल रहा है ना वैसे है ना? हाँ फील्ड है इसीलिए एबिलियन ग्रुप है ना और बराबर है हाँ वो तो है। हाँ और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन। अब देखो ये दोनों फील्ड है ना तो इसके जो मेंबर है एफ के मेंबर है ये बाय डिफॉल्ट के मेंबर होंगे यस करेक्ट। तो मैंने एफ और एफ के लिए जो स्टोरी बताई थी वही स्टोरी यहाँ पर काम कर रही है सेम स्टोरी। समझ में आ रहा है सबको? हेलो इतना हाँ हाँ नाटक किशोर हाँ। हेलो सबको हाँ समझ किशोर में आ रहा है समझ क्या गया। तनुश्री यस मैम किशोर यस। राणे मैम ओके सो के ओवर एफ भी वेक्टर स्पेस बन रहा है ओके क्योंकि ये सेम स्टोरी है इसकी और इस तुम लोग सोचो इसके बारे में यू विल अंडरस्टैंड। सो देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है आर ओवर आर वेक्टर स्पेस बन रहा है ओके क्योंकि आर ये तो हमने देखा आर ओवर आर क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ यस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ यस 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 तो उसकी तहत आर ओवर आर इज ए फील्ड सॉरी ये आर ओवर आर क्या बन जाएगा वेक्टर स्पेस फील्ड भी है वेक्टर स्पेस भी है
ओके, नाउ क्यू क्या है? सबसेट है आर का, करेक्ट? हेलो, Yes. 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 क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर. सो सुपर फील्ड बाहर है और अंदर सब फील्ड है, तो वो क्या बन रहा है? वेक्टर स्पेस बन रहा है. ओके, दिस इज व्हाट? वेक्टर स्पेस. के ओवर एफ अभी देखा ना हमने, के ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस. सो आर ओवर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस. बट क्यू ओवर आर इज वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा. बाहर सब फील्ड है और अंदर सुपर फील्ड है. अगर अंदर सुपर फील्ड रहेगा देन इट विल नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस. व्हाई? अब ये क्यों नहीं हो रहा है? ते सबसेट नाही त्याचा. हा 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 याचा सबसेट नाहीये आतला. पण आता कुठली प्रॉपर्टी फेल होतीये? वेक्टर ऍडिशन की स्केलर मल्टिप्लिकेशन? आता पहा, Scalar now when multiplication. you have to check given set is a vector space or not, what you have to do? You just have to check that first stage to check whether the given set is a vector space or not. Check that this vector this set is closure satisfying closureness under addition and under scalar multiplication or not. ओके, हमें पहले क्या चेक करना है? सबसे सिंपल, ये क्लोजनेस सेटिस्फाई करता है या नहीं अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब क्लोजनेस क्या है? मतलब मैंने कोई भी दो वेक्टर उठाए उस सेट के और उनका एडिशन किया तो उसी सेट में आना चाहिए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैंने दूसरा एक स्केलर हेलो, am I audible? हो यस यस. किशोर आवाज गया था बीच में, आवाज गया था बीच में, लेकिन ना अभी कॉल ठीक आया है. था इसकी वजह से. हाँ, ठीक. अभी देखो, मुझे कोई भी सेट दिया है V, ओके, मतलब V और कुछ ऑपरेशन डिफाइन किया, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब मुझे चेक करना है कि दैट सेट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट. तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वेदर दिस सेट सेटिस्फाइंग क्लोजरनेस और नॉट. मीन्स मतलब कोई भी मैंने दो वेक्टर उठाए उस सेट के V के और उनका एडिशन करने के बाद, वेक्टर एडिशन करने के बाद मुझे जो नया वेक्टर मिल रहा है वो उस सेट का मेंबर है कि नहीं, ये चेक करूंगा फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक स्केलर उठाऊंगा, उस स्केलर को मैं इस वेक्टर पे अप्लाई करूंगा. अब इस वेक्टर पे अप्लाई करने के बाद मुझे नया वेक्टर मिलेगा. I will check that whether that new vector is also member of V or not. First these two things. Forget about that 5 property. वो 5 प्रॉपर्टी में ही ये दो प्रॉपर्टी आ जाती है वैसे. ओके, तो सिंपल वे से मैं पहले ये दो प्रॉपर्टी चेक करूंगा. वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है या नहीं. गेटिंग इट? सब कुछ समझ में आया? यस किशोर, यस. ओके, नाउ अब देखो Q और R. Q और R के मेंबर क्या होंगे? Q और R के मेंबर कैसे दिखेंगे हमें? देखो मैं यहाँ पर Q और R लिखता हूँ. Q और R कैसे होगा सेट? देखो Q और R सेट ऐसे होगा, collection of X such that X is member of X. कहाँ का मेंबर है? मतलब Q और R में कौन से एलिमेंट रहेंगे? रैशनली रहेंगे ना सारे. गेटिंग इट?
सबको समझ में आया ये? हेलो Yes. हेलो, ये सेट Yes, सबको yes. समझ में आया? हेलो, सबको सेट समझ में आया ये? यस यस। ओके, नाउ अब देखो वेक्टर एडिशन के लिए क्या करना है मुझे, इस सेट के दो मेंबर लेने हैं। कोई भी मैंने दो मेंबर लिए, एक्स और वाई। Okay, am I audible? Yes. 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 ओके, नाउ मैंने दो मेंबर लिए एक्स और वाई। ओके, अब हमें पता है आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। ओके, और क्यू क्या है, इसका सबसेट है आर का। करेक्ट, तो ये सब फील्ड हो गया। करेक्ट, यस, ये क्यू क्या है, इसका सब फील्ड है आर का। और ये जो ऑपरेशन है दोनों का सेम है, यूजुअल एडिशन है और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब मैंने क्या किया, एक्स और वाई, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, दो रैशनल नंबर का एडिशन क्या आएगा, Rational number. रैशनल ही आएगा ना। करेक्ट, Yes. हाँ. यस, क्योंकि क्यू क्या है, फील्ड है ना, और फील्ड में वेक्टर एडिशन क्या है, क्लोजर ने सेटिस्फाई कर रहा है ना। X ये plus समझ में y आया are also rational. यस, सो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर जो है, स्केलर, अब मेरा फील्ड क्या है, एफ क्या है, आर है ना। करेक्ट, दिस इज माय एफ नाउ एंड दिस इज माय के। करेक्ट, अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर जो है वो फील्ड से आता है, मतलब अब मेरा स्केलर कहाँ से आएगा, Real. रियल से आएगा। स्मॉल के लेता हूँ मैं, स्मॉल के इज मेंबर ऑफ आर। अब ये जो है स्केलर, ये रियल नंबर है, तो उसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। करेक्ट, Yes. अब मैं इस रैशनल को इस पे, इसके कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करूंगा। के इंटू एक्स क्या आएगा, सपोज के इंटू एक्स, इज इट ऑलवेज रैशनल, Not necessary. नॉट नेसेसरी। करेक्ट, क्योंकि अगर ये के इरेशनल हो, सपोज रूट टू ले लें, मैंने के लिया रूट टू और एक्स ले लिया 1, रूट टू इंटू 1 रूट टू, which is irrational, does not belong to Q always. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलर One of the मल्टीप्लिकेशन property फेल रहा fails. है। यस, ये जो भी 5 प्रॉपर्टी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो समटाइम्स यू मे गेट अ क्वेश्चन, मतलब अभी सेट के लिए तो नहीं आता है वैसे क्वेश्चन, कि कोई भी सेट देते हैं
ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू विच प्रॉपर्टी दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, आइदर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो अगर बाहर सब फील्ड है और अंदर सुपर फील्ड है, then it will never become a vector space. Do you understand? Yes. But अगर बाहर फील्ड है सुपर फील्ड और अंदर सब फील्ड है, then it forms a vector space by default. Correct? ये सबको समझ में आया? तो सुपर फील्ड वाला कौन सा एग्जांपल है? ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, आर क्यू। R over Q or R over R. First one is also. Every set is a subset of itself. Why C over Z is not a field? Because Z is not a field. Z field नहीं है ना. Okay. Z is a ring, but not a field. आपने कल लेक्चर नहीं किया था ना? I'm sorry sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है ना, इसके लिए फील्ड होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में है ना वेक्टर स्पेस के V ओवर F। F क्या ले रहा हूं मैं? फील्ड ले रहा हूं। समझ में आया आपको? किशोर हाँ बोलना बोलना, हाँ बोलना राजू। किशोर एक 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 मेरे को खाली बता दे, अभी मेरा डाउट हाँ। थोड़ा सिली है। ओके, हाँ, मैंने अभी बोलो। तूने जो भी बताया ना मैं समझ गया भाई। वो जो के तूने लिया, तूने के इज नॉट बिलोंगिंग टू के, तुम्हारा सेट ऑफ इरेशनल होगा तो हाँ। इरेशनल मल्टीप्लाई करेगा रैशनल से तो क्यू को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, वो Yes, सब मेरे को correct. समझ में आ गया भाई। हाँ। बाहर वाला सुपर फील्ड होना चाहिए, अंदर वाला सब फील्ड होना चाहिए। लेकिन ये हाँ। एक्चुअली में ये जो क्यू ओवर आर हम लोग लिखते हैं ना, ओके, हाँ, उसका मतलब क्या होता है यार? क्यू ओवर आर का मतलब क्या है? उसको अगर किसी को समझाना मतलब रहेगा मेरे को तो भाई। V ओवर F में क्या होता है? V ओवर F में जो भी मैं लेता हूँ UV, हाँ। तो वो V के मेंबर होते हैं ना वो। अच्छा, यू वी के मेंबर होता है V ओवर हाँ, F में। हाँ, तो XY जो है तुम्हें वो किसके मेंबर होने चाहिए? अच्छा अच्छा, यानी कि देख, अगर मैं दूसरा वाला चौथा वाला एग्जांपल लेता हूँ, C ओवर। हाँ हाँ बोलो C ओवर। हाँ, यहाँ पर क्या होगा देखो, C ओवर Q में अब हाँ। इसमें क्या होगा, ये कैसे डिफाइन देखो, यहाँ पर मैं अच्छा, लिखता ऐसे हूँ। शुरू मैं बताता हूँ मैंने जो समझा है। C ओवर हाँ। Q में जो दो मेंबर उठाएंगे वो C के होंगे, और जो Yes. स्केलर मल्टीपल जो उठाएगा वो Q का होगा। यस एग्जैक्टली, जो भी स्केलर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर को, हाँ। वो कहाँ से आ रहा है? हाँ। Q से आ रहा है। हाँ हाँ। Clear. Thank you. नाउ C ओवर Z इट इज नॉट अ फील्ड। ये देखो, ये C क्या है? सुपर फील्ड है Q का। ये बराबर बन रहा है, हाँ। ये वेक्टर स्पेस बन रहा है, ये भी बन रहा है। Q√2 ये भी सब फील्ड है C का। ये हम डिटेल में देखेंगे जब रिंग थ्योरी देखेंगे, उसमें आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट Fx is a ring of polynomial. ये polynomial ring है। Okay, this is also filled, hence it is a. Okay. Again, same thing here. यही बोला था कि एग्जाम्पल है यही एग्जांपल, Q over R। सेम एग्जांपल। डबल हो गया, ठीक है। रिपीट हुआ, रिपीट। ओके, सी ये है Q over C। अगेन अगर बाहर से स्केलर आया, स्केलर कहाँ से आएगा? कॉम्प्लेक्स से आएगा, और कॉम्प्लेक्स को मैं रैशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। नॉट नेसेसरी आई विल गेट रैशनल ऑल द टाइम, हेंस इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ये होता है, दिस इज ऑल्सो फील्ड, Z2 इज अ फील्ड, सो फील्ड ओवर इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। वो 10th वाला किशोर, 10th वाला वो जो बाहर वाला सब फील्ड हो गया, अंदर वाला सुपर फील्ड हो गया, राइट? यस यस, करेक्ट करेक्ट।
ओके 11th में जो है ये रहता है ये फील्ड रहता है जेडपी रहता है फील्ड वेयर पी इज अ प्राइम। ये हम ग्रुप में देखेंगे अच्छे से, अभी इतना समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम, बस ये ध्यान में रखो जेडपी इज अ फील्ड वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। ओके पी क्या है? प्राइम। और ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनता Z2 और Z3। इसका प्रूफ में देखेंगे हम। अगर ये अलग रहता है, मतलब ये जो है इंडेक्स ये डिफरेंट रहता है, तो ये कभी फील्ड नहीं बनता, चाहे अंदर और बाहर दोनों डिफरेंट हो। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो ये इसका सुपर फील्ड है Z2 Z3 का, है ना, और यहाँ पर सब फील्ड है और यहाँ पर सुपर फील्ड है और यहाँ पर सुपर फील्ड यहाँ पर सब, ऐसा लग रहा हो तुम सॉरी लोगों को? ये होता ईश्वर सॉरी ये होता क्या है ये Z2 Z3 यार? हाँ ठीक है बताता हूँ मैं। Z2 क्या होता है? Z2 मतलब जब टू से मैं डिवाइड करूंगा किसी भी इंटीजर को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर आने की, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है रिमाइंडर आने की? 2 से मैं अगर किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है रिमाइंडर आने की? 0 1 आएगा और क्या है? 0 और 1। यस, सो ये होता है मेरा Z2। सिंपल वे से बता रहा हूँ, करेक्ट। Z3 रखूंगा, Z3 मतलब क्या? 3 से मैं डिवाइड करूंगा किसी भी इंटीजर को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर आने की? 0 1 0 1 2। तो इन शॉर्ट मैं अगर n ले रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर आने की? 0 to n minus 1। यस, 0 से लेकर n-1 तक। Getting it? उसको बोलते हैं इंटीजर मॉड्यूलो प्राइम, इंटीजर मॉड्यूलो सेट। तो इसमें n एलिमेंट होते हैं, देखो Z2 में 2 एलिमेंट है, एक मिनट एक किशोर ये प्राइम का मतलब प्राइम किस लिए लगाया भाई उधर किशोर? हाँ तभी ये फील्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। नहीं प्राइम का Z4 प्राइम कर हाँ Z4 हाँ प्राइम नंबर 2 3 5 अच्छा 7 लाइक दिस। अच्छा 4 नहीं होगा फिर हाँ ये नहीं बनेगा। ओके ये कभी फील्ड नहीं बनता। ओके क्लियर? हाँ तो ये देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने ZP over ZQ when P is not equal to Q then it is not a vector space, और दो इट इज अ डिस्टिंक्ट प्राइम। इसका प्रूफ दिया है डायमेंशन से, अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा डायमेंशन से क्योंकि हमने डायमेंशन वगैरह देखना है अभी। यशा और 12th एग्जांपल क्या है? ZP रेज़ टू 80 है क्या एग्जांपल 12? हाँ ZP रेज़ टू 80 मतलब ZP क्रॉस अप टू 80 टाइम्स 80 टाइम्स 80 टपल। दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस। ओके सपोज P की जगह मैंने 2 लिया तो Z2 क्रॉस Z2 अप टू 80 टाइम्स, 80 टपल वाला होगा वो। क्लियर? यस हाँ अभी ये जो है फंडा, अभी मैंने बोला था ना सुपर फील्ड सब फील्ड, बाहर सुपर फील्ड है और अंदर सब फील्ड है, then it forms a वेक्टर स्पेस। करेक्ट, ये जो बोला था मैंने, और बाहर सब फील्ड है अंदर सुपर फील्ड, तो वेक्टर स्पेस नहीं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, हाँ इसके लिए नहीं है, ये फाइनाइट फील्ड के लिए नहीं है। ये जो है ना ये फाइनाइट फील्ड है, इसमें फाइनाइट नंबर है। Z2 में कितने नंबर है? 2 ही नंबर है ना, मतलब इसका कार्डिनलिटी कितना है? फाइनाइट है। Zn का कार्डिनलिटी कितना है? n है ना, इसमें n एलिमेंट है 0 से लेकर n-1। तो दिस इज अ फाइनाइट फील्ड that we will
सी इन डिटेल इन फील्ड थ्योरी, बट अभी ध्यान में रखो कि ये फंडा यहाँ पर नहीं है जो मैंने पहले बताया था, सुपर फील्ड बाहर और अंदर सब फील्ड, देन इट इज अ वेक्टर स्पेस। वो क्या है, इनफाइनाइट फील्ड के लिए हो रहा है, वैसे वो सबके लिए हो रहा है, बट यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि Z3 इज सब सुपर फील्ड ऑफ Z2, बट ऐसा नहीं है। Z2 is not a subfield of Z3 और Z3 is not a superfield of Z2। ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। Getting it? Z3 और Z2 they are not a subset or superset of each other, क्योंकि Z3 में अभी ये एक्चुअली ये जो है ना, ये 0 1 2 ये एक्चुअली क्लासेस होते हैं। हेलो, सबको समझ में आ रहा है? Yes, yes. यस These are the classes। ये इसको हम बार में लिखते हैं, 0 बार 1 बार 2 बार। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। तो 0 बार में क्या मेंबर आएंगे? हाँ, 0 बार में क्या मेंबर आएंगे? All the multiples of मल्टीपल्स ऑफ multiples। करेक्ट। मतलब मैंने 3 को डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर आता है 0, 6 को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर आता है 0। तो ये 0 बार में कितना, ये एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ रहा है? Yes, yes. Okay। तो इसमें 3 का मीनिंग है 0, 3 is same as 0। ओके, फॉर दिस 3 is same as 0, 6 is same as 0, 9 is same as 0, 12 is same as 0। Getting it? Similarly 4 is same as 1, क्योंकि जब मैं 3 से 4 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। Getting it? 7 को डिवाइड करता हूं 3 से तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है? 1। So here 7 is same as 1, 11 is same as 1, understand? 14 is same as 2, 13 is same as 1। Getting it? Similarly 5 is same as 2। okay, 5 का मतलब है 2, क्योंकि जब मैं 3 से 5 को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2। सबको समझ में आ रहा है ये? राजू? हाँ समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो और भी क्या आएगा इसमें? 3 का ऐड करते जाओ, 8 आएगा इसमें, 11 आएगा, 14 आएगा, 17 आएगा, निगेटिव भी आएंगे, निगेटिव इंटीजर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, -1। ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन से आता है, वो उससे ये पार्टीशन करता है इस इंटीजर का, इंटीजर सेट। ओके, Compare that 0 in the Z3 with the 0 in the Z2 so that हाँ these अभी two are देखो, different. This is हाँ first of यहाँ पर 3 का मेंबर क्या, 3 का मीनिंग क्या है इस सेट में? Z3 में 3 का मीनिंग क्या है? 0। बट Z2 में 3 का मीनिंग क्या है? 1 तो इसीलिए Z2 is not a subset of Z3। Getting it? Do you understand? क्योंकि यहाँ पर जो है 3 ये 1 के क्लास में जा रहा है और यहाँ पर 3 जो है ये 0 के क्लास में जा रहा है। Getting it? So Z2 is not a subset of Z3। Keep this in mind। समझ में आ रहा है सबको? ईश्वर, ये जो है ये तो समझ में आया, बट ना मतलब इतना अच्छे से नहीं समझ में आया कि क्यों सबसेट नहीं होगा वो। क्या फिर से बोलो।
सबसेट क्यों नहीं होगा, सबसेट क्यों नहीं होगा वो नहीं हाँ, समझ में आ रहा है सबसेट इतना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अभी देखो यहाँ पर मतलब 3 का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कौन है Z3 में? Who is the representative of 3? 0 है। Definitely paint पे लिख के 0 है। 3 का रिप्रेजेंटेटिव 0 है और इसमें 3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है Z2 में? 1 है, 1 है। आर दे सेम? नहीं है, सेम नहीं है। सही है ना, इसीलिए इसका जो मेंबर है ये इससे डिफरेंट है इसके मेंबर से। गॉट इट, गॉट इट। Z2 is not a subset of Z3 or Z3 is not a superset of Z2. Getting it? Okay. ये प्रूफ बता देता हूँ मैं फिर भी। नहीं, प्रूफ अगर ज्यादा हेवी होगा तो मत बता, दूसरा कुछ बता किशोर। ठीक है, अभी बाद में देखते हैं जब डायमेंशन देखेंगे ना। हाँ, थोड़ा और मैच्योर होने जाने दे हम लोगों को, ठीक है। तो पता मुझे नहीं बाकी बताना लोगों फिर को आप। नहीं मालूम। हाँ, अगेन Z7 over Z11 is not a vector space क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं वैसे। ओके, नाउ दिस इज द वेक्टर स्पेस। ये सेम है ना, ये खुद ही खुद का सबसेट। ओके, नाउ मैट्रिक्स स्पेस। नाउ विल कम टू मैट्रिक्स स्पेस। V ओवर F ले लिया हमने। M क्रॉस N ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन। अब एडिशन कैसे डिफाइन किया है देखो, वेक्टर एडिशन यूजुअल किया है Aij प्लस Bij इज इक्वल टू Cij प्लस Bij, मतलब कंपोनेंट वाइज एडिशन किया है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। ये दोनों ऑपरेशन सबको समझ में आया ना, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन? यस। ओके, देन अब मैंने फील्ड के लिए यहाँ पर R लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, फील्ड इज सेट ऑफ रियल नंबर। M2 ओवर R मतलब क्या है? 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन जिसके एंट्रीज क्या है, कहां से एंट्रीज? रियल से। ओके, और फील्ड भी क्या लिया है मैंने? R लिया है F। ये समझ में आया सबको? Sir, can you explain again? Yes. Whatever matrices I am taking in this set, A, B, C, D, whatever entries are there, this A, B, C, D belongs to from R. Okay, because of this. A, B, C, D belongs to R. R. Okay. And base field के लिए है मैंने, field के लिए है R. तो मतलब जो भी scalars आ रहे, that is also from R. R. Clear? Yes, sir. Now this set forms with respect to these two operation, जो भी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किए यहाँ पर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। जब हम ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे, then all the properties will get satisfied. Clear? Yes. Do you understand? Okay. Now again, अब सेकंड एग्जांपल देखो। अब 2x3 मैट्रिक्स है, 2 rows 3 कॉलम। ओके, अब इसमें क्या होगा? 2x3 matrices है, correct? Collection of all 2x3 matrices whose entries are from real. Okay, अब ये A B C D E F क्या है? रियल नंबर है
और अब जो बाहर से मेंबर आएगा स्केलर का, तो स्केलर क्या होगा? रैशनल। रैशनल। और हमने देखा है अंदर सब फील्ड हो और बाहर फील्ड हो, सुपर फील्ड, तो वो क्या बनता है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर वेक्टर स्पेस। गुड। नाउ थर्ड एग्जांपल देखो। अब थर्ड एग्जांपल में अब ये ए बी सी डी ई एफ क्या होगा? ये किसके मेंबर हो गए? रैशनल। रैशनल। ए बी सी डी ई एफ क्या होगा? रैशनल। अब जो के आएगा बाहर से मल्टीप्लाई करने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम, वो कहां से आएगा? रियल होगा वो। इट में भी आई रैशनल और इरेशनल। सपोज ये इरेशनल रहा के और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये एंट्रीज क्या बन जाएगी? irrational. रियल। हाँ, रियल बन जाएगी, Irrational. नॉट नेसेसरी ये रैशनल रहेगी। करेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर ये Yes. इरेशनल बन गई तो ये इस सेट में लाई करेगी क्या? तो ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे जिसकी एंट्री इरेशनल है, तो ये इसमें लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। सो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? वेक्टर एडिशन तो सेटिस्फाई कर लेगा। मैंने और एक 2x3 मैट्रिक्स ले लिया। ओके, इसमें कुछ 6 एंट्री है रैशनल, दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे रैशनल ही मैट्रिक्स मिलना है। बट अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मुझे रैशनल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। गेटिंग इट? सो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। सबको समझ में आया? This is not a matrix space. Vector space. यस, वेक्टर स्पेस। Matrix. Vector space. Getting it? Matrices का space. मैट्रिसेस का स्पेस है इसलिए उन्होंने बोला है मैट्रिक्स स्पेस। ओके, ये वेक्टर स्पेस ही है जनरली। ओके, बट ये मैट्रिसेस के इसलिए उन्होंने मैट्रिक्स स्पेस बोला होगा। क्लियर? सो इन शॉर्ट, जब भी बाहर सुपर फील्ड है, सॉरी बाहर सब फील्ड है, बाहर इन द सेंस बार सुपर फील्ड है ना। हाँ, और अंदर सब फील्ड है, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है क्योंकि वहां पर हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो रहा है जनरली। सुपर Clear? फील्ड अंदर होना चाहिए और सब फील्ड बाहर होना चाहिए। सब फील्ड नहीं, सुपर फील्ड बाहर होना चाहिए और अंदर सब फील्ड, ये अंदर वाली जगह है हमारी, मतलब जो भी मैं फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। गेटिंग इट? Yes. अंदर छोटा फील्ड सब फील्ड और बाहर सुपर फील्ड होना चाहिए, देन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। Yes, sir. Got it. सेम थिंग हियर, ये सुपर फील्ड है, सब फील्ड है, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस ही है पॉलिनोमियल का। V ओवर एफ एफ एक्स। ओके, पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस अप टू an x रेज टू n, वेयर ai इज जिस फील्ड पे मैंने डिफाइन किया उसका नंबर। ये जो है कोएफिशिएंट है, ये कहाँ से है? जिस फील्ड पर मैंने डिफाइन किया, मतलब इफ आई डिफाइन r ओवर x, ऊपर मैंने r ओवर x डिफाइन किया, इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल का कलेक्शन है उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ओके, ए आई किसके मेंबर होंगे? आर के। अगर मैंने सी ओवर एक्स डिफाइन किया, सी एक्स ऐसे डिफाइन किया, तो कोएफिशिएंट्स कहाँ के होंगे? कॉम्प्लेक्स के होंगे।
क्लियर? ये समझ में आया? ये सेट समझ में आया सबको? हेलो? यस ओके। नाउ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया है? दो पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे है? कंपोनेंट वाइज एडिशन, कांस्टेंट विद कांस्टेंट, x का कोएफिशिएंट विद x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से ऐड होगा। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ये जो लैम्बडा है ये हर एक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेगा इस पॉलिनोमियल। ओके, देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू ऑपरेशन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? ओके, अभी क्या किया है? ये सुपर सेट सबसेट लिया है। यहाँ पर मैंने डिग्री रेस्ट्रिक्ट किया है पॉलिनोमियल का। डिग्री क्या लिया है? अप टू n लिया है, n डिग्री तक की पॉलिनोमियल का कलेक्शंस। ओके, अगेन ऑपरेशन वैसे ही है जैसे प्रीवियस था, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन, और हर एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेगा स्केलर, देन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। सबको समझ में आया पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस? Yes. यस और नो? यस राजू, एनी डाउट? किशोर मेरे ख्याल से वो थोड़ा इजी है, मेरा कनेक्शन गया हुआ था, मेरे ख्याल से वो सिंपल है वो मेरे ख्याल से फिर से जरा एक बार जस्ट रिपीट कर देगा तो बढ़िया होगा। ठीक, जस्ट द पॉलिनोमियल, आई थिंक तूने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ तो बोला, उसको फील्ड वो उससे लेना पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और पॉलिनोमियल का ये सेट तो समझ में आया? वो RX समझ में आ मतलब गया, क्या? वो समझ में उसके CX कोएफिशिएंट्स रियल नंबर के होने चाहिए, कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के होने चाहिए। करेक्ट, उसके बाद वेक्टर एडिशन मतलब कोएफिशिएंट्स ऐड होके आपका उसी Yes. सेट को बिलोंग करना चाहिए। यस। मतलब यहाँ पर वेक्टर एडिशन क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट से ऐड होगा, x का कोएफिशिएंट होगा इधर का ये दोनों में ऐड होगा, x ओके स्क्वायर का x गॉट इट, स्क्वायर। हो गया, समझ में, ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़। फंक्शन स्पेस, अब क्या किया है? V ओवर F, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम F to F। ओके, collection of all functions from F to F, where F is any field। ओके, क्या किया है मैंने? सारे फंक्शंस का कलेक्शन किया फ्रॉम F to F। ओके, और क्या डिफाइन किया? एडिशन ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन, F1 plus F2x as F1x plus F2x, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्बडा टाइम्स f of x, it's same as lambda times f of x, then it forms a vector space। okay, next is sequence का space है V over F। okay, collection of all sequences, अगर f मैंने रियल लिया तो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस, अगर f मैंने c लिया कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, अगर मैंने q लिया तो कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल सीक्वेंसेस। रैशनल सीक्वेंस मतलब उस सीक्वेंस के सारे नंबर्स क्या होंगे? रैशनल। रियल सीक्वेंस मतलब उस सीक्वेंस के सारे नंबर्स रियल होंगे। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस मीन्स सारे नंबर सीक्वेंस के कॉम्प्लेक्स होंगे। करेक्ट?
और अब वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया है, xn प्लस yn, दो सीक्वेंस का सम कैसे किया है, xn प्लस yn कंपोनेंट वाइज, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस xn will get add to first element of sequence y, second element of sequence xn will get add to second element of sequence y. Do you understand? Yes. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं, ये स्केलर सीक्वेंस है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट फॉर्म्स अ न्यू सीक्वेंस, करेक्ट? Do you understand this? Then this set forms a vector space. सब कुछ समझ में आया वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन? हेलो, यस और नो? ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सबको समझ में आया वेक्टर स्पेस? हेलो, यस यस, हाँ आ गए? किसी को कोई डाउट है? नहीं No. किशोर, नहीं। No. ओके ओके, now subspace. Okay, let V be a vector space and W is a subset of V. W क्या लिया मैंने, एक सबसेट लिया V का, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट. Then W is said to be subspace of V. Okay, W का हम सबस्पेस कब बोलेंगे, V का, when W is itself a vector space with respect to whatever vector addition defined on V and whatever scalar multiplication defined on V. जो मैंने V पे वेक्टर एडिशन डिफाइन किया है, जो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन V पे डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू उसी ऑपरेशन के this W has to be a vector space. Then I will call as W as a subspace of V. Okay, getting it? Yes. कोई नया ऑपरेशन नहीं डिफाइन करना है मुझे. मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर स्पेस दिया है, उसका एक सबसेट लूंगा और जो मैंने ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन किया है V पर, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको मैं इस सेट पे ऑपरेट करके चेक करूंगा whether this set satisfying the condition of this vector space. ओके, जो भी कंडीशन है वेक्टर स्पेस वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं उसको, इस W को क्या बोलूंगा, उसका सबस्पेस. क्लियर? प्रदीप, यस यस, समझ लो ना? यस यस यस. Okay. Okay, and this is a this is the way to check, shortcut way to check that given set is a vector space or not. Okay, W1 plus W2 belongs to W, where W1 and W2 belongs to W. मतलब मैंने इसके कोई भी W के कोई भी दो एलिमेंट उठाए तो उनका एडिशन अगेन W में जाना चाहिए. वही है वेक्टर एडिशन का, और ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और अनदर वे, ये डायरेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन. स्केलर, एक स्केलर से इसको इस वेक्टर पे ऑपरेट किया, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर पे ऑपरेट किया, और उन दोनों का एडिशन अगेन W में आना चाहिए. देन वी कैन डायरेक्टली से दैट W इज अ सबसेट. ये चेक करने के तरीके हैं. हाँ, दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे, दिस इज द थर्ड वे.
ये देखो यहाँ पर मुझे एक ही बार चेक करना है, एक ही चीज चेक करनी है जिसमें वेक्टर एडिशन भी हो रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बाद में वेक्टर एडिशन भी बन रहा है, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। गेटिंग इट? यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, दो अलग अलग करना पड़ रहा है, यहाँ पर वेक्टर एडिशन सेपरेटली और यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो मुझे ये मिलता है और ये भी मिलता है। गेटिंग इट? मैं अगर ये कर रहा हूं तो मुझे एक ही बार करना है काम, इसके लिए भी एक ही बार काम करना पड़ रहा है। बट अगर मैंने ये कर रहा, मुझे दो बार अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ रहा है, दो बार काम करना पड़ रहा है। वेक्टर एडिशन मुझे सेपरेटली चेक करना पड़ रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली चेक करने पड़ रहा है। गेटिंग इट? बट आई एम चेकिंग दिस, अगर इसमें से ये दोनों में से एक कंडीशन भी फेल हो रहा है, ओके, अगर इस दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो रहा है, आइदर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो बाय डिफॉल्ट ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। गेटिंग इट? बट यहां से मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है, वेदर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग इट? यस। बट आपको अगर क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली आंसर निकालना है कौन सी कंडीशन फेल हो रहा है, देन यू हैव टू गो बाय दिस वे, फर्स्ट चेक वेक्टर एडिशन and then scalar multiplication, then you can explicitly tell that which condition is going to fail. I think that can be understood there in the below step also, no? Which one? This one. Whatever you are saying, two cases, whether scalar Yes, multiplication is failing or, because I'll just observe the first element, lambda 1, lambda 2, lambda 1 w1. There itself I'll come to know whether that is a member of Yes, W yes, or yes. not. Yes, yes. Here, from here you also can directly see that. Okay, now we'll see example. Okay, properties रह गए थे ना हमारे वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज देखते हैं एक बार। Okay, some properties of vector space over a field F. Let V be a vector space over a field F. Then देखो इसको ऐसे रीड करते हैं, V over F is vector space over a field F. Then first property, 0 into V is equal to 0. Okay, अब 0 क्या है? 0 is a scalar. Okay, 0 is a member of F. Okay, जब मैं 0 को किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 0. अब नाउ दिस 0 इज व्हाट? दिस 0 किसका मेंबर होगा? ये फील्ड का, वेक्टर का होगा ना, Member of vector space. वेक्टर का होगा ना। देखो ये स्केलर है मेरा और ये वेक्टर है, जब मैं स्केलर को वेक्टर पे ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? The product needs to be fall there in the vector. भी वेक्टर, वेक्टर मिलेगा ना। वेक्टर मिलेगा। हाँ, तो ये जो है ये वेक्टर है, ओके, और ये जो है ये स्केलर है। ओके, क्लियर? Yes. Now we'll see the proof. 0 into V. Can I write this 0 as 0 plus 0? Yes. Yes? Yes. इस 0 में 0 plus 0 लिख सकता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब मेरे पास A है 0 into V is equal to 0 into V plus 0 into V. So this will get cancel out. Let integration down. Sorry.
इसका हम निगेटिव वेक्टर ले लेंगे। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू वी इज सेम एज 0 वेक्टर। ओके, मतलब इन शॉर्ट मैं फील्ड के 0 एलिमेंट को किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 वेक्टर मिल रहा है। गेटिंग इट? Similarly, here lambda is a scalar and 0 is 0 vector. Okay, lambda क्या है मेरा, स्केलर है, फील्ड का मेंबर है, whereas 0 is a member of V, 0 vector है यहाँ पर। Okay, if I operate any scalar on 0 vector, what I will get again? Vector. 0 vector. Getting it? मैं कोई भी लैम्बडा, वेदर इट इज 0 और नॉन 0 एलिमेंट, ओके, ये लैम्बडा कुछ भी हो, उसको मैं 0 वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे 0 वेक्टर ही मिलेगा। गेटिंग इट? अगेन द प्रूफ इज सेम वे। अब बस यहाँ पर 0 वेक्टर को 0 के एडिशन में लिखा है। नाउ अनदर थिंग, अगर एक स्केलर है मेरे पास लैम्बडा, ओके, उसको मैं किसी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा हूं v पे, ओके, और अगर मुझे 0 वेक्टर मिल रहा है, ओके, आई एम ऑपरेटिंग लैम्बडा ऑन v एंड आई एम गेटिंग अ 0 वेक्टर, then in that case either that lambda is 0 or that vector v is 0. okay, okay? इस केस में अगर लैम्बडा इंटू वी मुझे 0 मिल रहा है तो आइदर लैम्बडा 0 होगा या फिर v 0 होगा। ओके, इसका प्रूफ, इफ लैम्बडा इज 0 then by first case, okay, if lambda is 0 then by first case we'll get 0, then nothing to prove, correct? Yes. But if lambda is non-zero, okay, अगर lambda non-zero है, okay, now if lambda is non-zero, okay, अगर lambda non-zero है और lambda किसका मेंबर है, फील्ड का मेंबर है, स्केलर है, करेक्ट, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था yesterday we have seen all non-zero members of field must have inverse, correct? Hello, do you remember? Yes. Yes. Okay. Now तो लैम्बडा इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब लैम्बडा इनवर्स को मैं इस पे ऑपरेट कर रहा हूँ, लैम्बडा पे। नाउ बाय दिस प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 v सेम एज लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 टाइम्स v, करेक्ट, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे पे साथ ऑपरेट कर सकता हूँ। तो लैम्बडा इनवर्स इनटू लैम्बडा क्या मिलेगा, लैम्बडा इनवर्स इनटू लैम्बडा क्या मिलेगा, 1. 1, और 1 इंटू वी हमें क्या दिया है, 1 इंटू वी क्या मिला है, 1 इंटू वी वी मिलेगा, और लैम्बडा वी क्या दिया था, 0, तो हमें वी क्या मिल रहा है, 0. एक्चुअली ये स्टेप उन्होंने गलत लिखा है, ओके, एक्चुअली इधर लैम्बडा होना चाहिए और यहाँ पर वी होना चाहिए। ऐसा होगा, करेक्ट, और यहाँ पर v होगा, करेक्ट, ये बन जाएगा 1, तो 1 इंटू वी मिलेगा, तो 1 इसका इंटू वी, मेमोरी बढ़ा देना।
1 into v, और यहाँ पर क्या दिया है लैम्डा v 0, सो v इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। समझ में आया ये प्रूफ? यस। यूज करके देख कैसा लग रहा है। अरे उसमें मेरा फोन है। प्रदीप, क्या लाइट बंद करके सोती है क्या? प्रदीप, किशोर आज इतना ही रखो किशोर। ठीक है, हाँ ठीक। नहीं, ये प्रॉपर्टीज देखते हैं बस, ये एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है। लैम्डा टाइम्स माइनस वी सेम एज माइनस लैम्डा टाइम्स वी और माइनस टाइम्स लैम्डा वी। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो आप एक बार। ओके, इसको क्या किया है, लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 वेक्टर को हमने लिखा है v माइनस वी, देन इसको ऐसे लिखा है माइनस वी, देन फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ऐसे लिखकर फिर इसको इस फॉर्म में लिख। ठीक है, अभी सम स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस हमने देखा। ठीक है, आज के इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई लेट ज्वाइन हुआ हो तो। यस, किसी को कोई डाउट है? हेलो, am I audible? यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू। आज स्टॉप करते हैं, फिर कल हम देखते हैं रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू किशोर, थैंक यू। वेलकम। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, तो थोड़ा ज्योमेट्री का मैंने डाला है ना, एक बुक डाला है, तो थोड़ा रेफर कर लो एक बार, मतलब 2-4 पेज तो देखो एटलीस्ट, तो आपको समझ में आएगा। ठीक। ओके किशोर। अटेंडेंस लेना चाहिए, अटेंडेंस का प्रेझेंटरच्या वर थ्री डॉट्स असतील ना, तुझं नाव जिथं आहे, तुझं नाव जिथं आहे इकडे असते। हा ठीक आहे, राईट, पार्टिसिपंट्स। ते आता हे जे मला हे पाहिजे असतील, हे काय बोलतात लेक्चर्स, ते आपल्याला कॉलेजला कॉन्टॅक्ट करावं लागेल का? नाही, तुझ्या लॉगिन वरून भेटतं नाही, तुझंच लॉगिन यूज करतोय का तू? नाही, कॉलेजची यूज करतोय ना। नाही, कॉलेजचा म्हणजे ईमेल आयडी कोणाचा आहे तो? माझाच आहे। मग तुझ्या अकाउंटवर दिसतं ना टीम्सवर। नाही, पण ते कॉलेजने आम्हाला क्रिएट करून दिलेले अकाउंट. हो, तेच बरोबर आहे, कॉलेजच आपल्याला क्रिएट करून देतं, त्याच्यात तुझं टीम सेशन चालू केलंय। कॅलेंडर असतं ना, तिथे वर बघ टीम्स नावाचं ऑप्शन असते, तिथे गेल्यास की वेगवेगळ्या चॅनलमध्ये पूर्ण सेटिंग्स वगैरे दिसतात। एक मिनिट तू शेअर ना, टीम्सच्या ऍपवर जा, टीम्सच्या ऍपवर कर्सर नाही तुझं?
लॅपटॉपवर बसलाय ना तू? जामकर, प्रदीप दत्तराव जामकर कर ना नाव अख्खं. हॅलो हॅलो, हा बोल हा. ना विठ्ठल. टीमच्या ऍपवर नाही ना तुझ्या? टीमच्या ऍपवर कर्सरने 2 विंडोज दिसतील तुला. कॅलेंडरच्या हा, विंडोवर इथे. जा. हा, हे राईटला बघ, टीम्स इथे सेटिंग्स आहेत. आता मी एवढ्यात हा. रेकॉर्ड केलं नाही, मला लक्षात नाही, पण या टीम्स वर कॅलेंडरच्या वर टीम्स वर. हा आणखी. हा, हा, टीम्स वर हा. गेलोय. आता कोणतं लेक्चर काय नावानं चॅनल क्रिएट करायला पाहिजे इथे एखादं. किंवा खाली त्या 3 डॉट्सवर क्लिक कर, तुला कुठे ना रेकॉर्डिंग झालेले दिसतील. कुठे इथं? इथे नाही इथे नाही, हे वेगवेगळे ग्रुप इकडे आहेत खाली म्हणतोय का? हा, इथे 3 डॉट्स. हा. नाही, इथे थांब, याच्यातलं काही नाहीये, याच्यातलं काही नाहीये, हे एक्स्ट्रा हे ऍड करण्यासाठी आहे. ओके, ऍप्स. कारण हे पण आहे ना, काही वेळासाठीच असतं, त्याची लिमिट आहे. 72 तास काहीतरी राहतं व्हिडिओ, त्यापेक्षा जास्त वेळेस व्हिडिओ राहत नाही याच्यावर. हा का? हा, मग इथे त्यामुळं कॅलेंडर मध्ये गेलोय. कॅलेंडरमध्ये नाही. इथेच इथं आपण एखाद्या सेटिंग मध्ये सापडतं. मी मागच्या लेक्चर हे सेमिस्टरला करतो ना रे. नाही, याचा काही संबंध नाही, कॅलेंडरचा काही संबंध नाही. आयदर टीम्स नाही तर खाली 1 मिनिट थांब, मला आठवून दे. मी आठव. मागच्या सेमिस्टरला 1-2 केले होते, त्याच्यानंतर केलं नाही नेमकं. एकदा हा हे जे फोल्डर आहे ना, असे जे फोल्डर निघतात, तसं आपलं जे ना, ज्या खाली इथे हे मीटिंग ते वगैरे दिसतं, तिथं खाली एकदा जाऊन बघ बरं, कुठे रेकॉर्डिंग असं दिसतं का? हे दिसतं रेकॉर्डिंग आहे स्टार्टेड होते. नाही, खाली जा, डाउनलोडचं ऑप्शन येतं डायरेक्ट तिथं. हा, ह्याच पेजवर कुठेतरी असायला पाहिजे. हे वर जा थोडा. एक रेकॉर्डरचं सिम्बॉल दिसला बघ, हे काय, मीटिंग रेकॉर्डिंग स्टार्टेड आहे का ते? त्याच्यावर ते काही लिंक आहे का त्याच्यावर? मीटिंग स्टार्टेड? नाही, खाली जा. ते सिम्बॉल बघितलं की लगेच कळेल की हे रेकॉर्डिंग झालेलं असू शकतं असं. होय, रेकॉर्डिंग ॲज स्टार्टेड असं सिम्बॉल आहे का? ते जिथलं आहे इथे याच्यावर येतं, आणि ते रेकॉर्डिंग माहिती आहे का, लगेच डाउनलोड करायला लागतं. कारण 72 तास राहतं बहुतेक. 72 तास का जास्तीत जास्त 3-4-5 दिवस राहतं, एवढं काहीतरी, असं काहीतरी आहे त्याचं लिमिट. त्यानंतर ऑटोमॅटिक व्हॅनिश होईल डाउनलोड नाही केलं. आपण आता सेटिंग मध्ये जाऊन बघू का इथं? हे केजी आहे ना, केजीच्या वर डॉटर, हे जे पेज आहे, पेजचा पाथ लक्षात ठेव, याच्यावर असण्याचे जास्त चान्सेस. हॅलो सागर सर. हॅलो, हा बोला ना. रेकॉर्डिंग स्टॉप केली का तुम्ही? नाही. स्टॉप कर. हा, मग ते स्टॉप करा, नंतर दिसेल स्टॉप कर, तुम्हाला. मग दिसेल, मग लिंक दिसेल. बरोबर. अच्छा, इथे का? हा, तुमचं रेकॉर्डिंग चालूच आहे. स्टॉप ते कर. नाही, तुम्ही स्टॉप करा, 3 डॉट मध्ये जा, 3 लेक्चर मध्ये डॉट्स वर जाऊन 3 डॉट मध्ये. ओके. हा, 3 डॉट्स मध्ये जाऊन रेकॉर्डिंग पहिल्यांदा स्टॉप करा. त्या नाही 3 डॉट्स मध्ये, कॅलेंडर मध्ये जा. हा, इकडे स्टॉप करा, नंतर दिसेल तुम्हाला.